Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14 SFM, in that financial derivatives. Already we have seen from the new study material, that is question number 67, 68 and 69. Now we are going to solve illustration number 70. Companies X and Y face the following interest rate. So X and Y का following interest rate आपको दिया हुआ है, floating interest rate and fixed interest rate. Okay, X want to borrow US dollar at a floating rate of interest and Y want to borrow the Canadian dollar at a fixed interest rate. Okay, basically this is objective of that company is given. Okay, if you haven't watched first video and second video, then please watch that video first, because you will understand the type of question over there, so it will be easy to understand these questions, that is illustration number 70, 71 and 72. Okay, these are similar kind of illustrations, so please try to understand 67, 68, 69, and thereafter you can solve these questions easily. Okay, so X financial institution is planning to arrange the swap and requires 50 basis point spread. Okay, so here financial institution is there. In the earlier questions there was no financial institution. Okay, means they were taking loan from the bank, and from that companies, in between that company swap agreement was there, but here financial institution is arranging the swap agreement for them. Okay, so this is a little bit different question. Okay, not a major difference, but there is a difference. Okay, if the swap is attractive to the X and Y at a 60-40 ratio, so basically this is the gain ratio which we have already seen in the last question. What rate of interest will X and Y end up paying? Okay, so basically we are going to solve this question. Very simple question is this. So first of all, as we know what is our format, so first of all company X, company Y, and here it is difference. So fixed interest rate for company X का fixed interest rate question में दिया हुआ है, see floating and fixed. ठीक है, so it is 5%, and in case of company Y it is 6.5%. ठीक है, thereafter this floating interest rate is given, LIBOR plus 0.5%, so LIBOR plus 0.5%, and here it is LIBOR plus 1%. Okay, so L plus 1%. Okay, now we will find out the differences. Here 6.5 minus 5, it is 1.5%, and here it is 1 minus 0.5, it is 0.5%. ठीक है, now company's objective is given after that table in the question. X want to borrow on a floating rate. Okay, so X का objective है floating and Y का objective भी दिया हुआ है, Y का objective है आपका fixed. Okay, this is given in the question. Okay, but now we will check for a swap which is better one for which company. Okay, so here 1.5% is given, right? I mean this difference is more. Okay, this difference is more, so let's check the rates. Here less rate is of company X. Okay, these steps are totally same for all the questions, this kind of questions. ठीक है, so it is 5%, so it is less, so company X should borrow not on floating but on fixed. Okay, so swap के accordingly company X के लिए better क्या है, fixed. Now here it is fixed, so obviously here it will be floating. Okay, यहाँ पे floating ही आएगा, एक का fixed दूसरे का floating. I hope आपको ये clear हुआ होगा. Now calculation of total interest as per their objective. As per their objective, company X का objective क्या था, floating. Okay, so floating के हिसाब से company X L plus 0.5%, right? Here company Y का objective था fixed, so fixed के हिसाब से 6.5%. ठीक है, now total interest as per their objective, so it's very simple, LIBOR plus, see 6.5 plus 0.5, it is LIBOR plus 7%. Okay, LIBOR plus 7%. Now calculation of interest as per swap. swap के हिसाब से आपका क्या होगा, सी कंपनी X स्वैप में फिक्स है और कंपनी Y ये स्वैप में फ्लोटिंग है. ठीक है, सो हियर इट इज फिक्स्ड, here it is
फ्लोटिंग। ओके, कंपनी एक्स में चेक करके आ जाओ, फिक्स में कितना है 5%, एंड कंपनी वाई फ्लोटिंग में लिबोर प्लस 1%। ठीक है, चलो टोटल फाइंड आउट करते हैं। टोटल इंटरेस्ट लिबोर प्लस पाई प्लस 1, it is 6%. It's very simple. Now calculation of gain due to the swap, 1 minus 2. Okay, this is your equation 1, that is LIBOR plus 7%, and this is your equation 2, that is LIBOR plus 6%. So basically L plus 7% में से माइनस करना है, सॉरी L plus 6%. ठीक है, so obviously L cancel, 7 minus 6, it is 1%. so gain is of 1%. ओके, गेन 1% का है। अभी तक जो क्वेश्चन देखे यहाँ पे हम लोग ये गेन डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते थे कंपनीज में। ओके, टिल दिस क्वेश्चन मीन्स इन अर्लियर क्वेश्चंस व्हाट वी वर डूइंग, दिस गेन इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कंपनीज, बट in this question there is an intermediary, that is financial institution. So obviously financial institution want its charges. See, 50 base points, 50 base points it means 0.5, 0.5% का जो भी स्प्रेड मतलब गेन है वो किसको चाहिए, चार्जेस किसको चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, सो ये देखो नेट गेन, टोटल गेन कितना है 1%। ओके, उसमें से चार्जेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 0.5%। ओके, 50 बेस स्प्रेड पॉइंट इट मीन्स 0.5। ओके, हाफ। सो ऑब्वियसली net gain for two companies, that is company X and Y, it is 0.5. I hope you are getting me. After that this gain we will distribute in this ratio. Ratio is already given in the question. So 0.5 multiplied by 60%, 0.5 multiplied by 40%. Okay, let's check. 0.5 multiplied by 60%, 0.3 and 0.2. okay, done. Now this is our diagram. Okay, normally we know we have done, I think it twice we have done this, but here new part is financial institution. Okay, it's quite easy than the earlier. I hope you will understand this. See, first of all bank. Okay, this financial institution is arranging swap agreement for these companies. Okay, try to understand this. Baki this part is same. Okay, this part is same, just this part is new. Okay, company X, company Y, bank, their bank is giving loan to company X and Y. Okay, loan का amount यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, so we will just write loan, that's it. Now see, we know that company X will pay interest to the bank as per swap, and यहाँ पे company Y भी interest bank को pay करेगी as per swap. चलो swap में जाके चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ स्वैप में जाके चेक करते हैं कंपनी एक्स कितना पे करेगी 5% और कंपनी वाई लिबोर प्लस 1%. ओके, सो यहाँ पे 5% पे करेगी, यहाँ पे लिबोर प्लस 1%. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है, देखो अभी इन दोनों के बीच में कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ऑब्वियसली ये जो 5% कंपनी एक्स दे रही है बैंक को, वो कौन किसको देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्स को, और एक्स उठा के देगा बैंक को. ओके, सी in this question there is a financial institution is the intermediary. Okay, so company X was not ready for fix. Okay, its objective was floating. So company X what it will do, it will pay fixed interest to the bank, right? But it will take that fixed interest from the financial institution. Okay, I hope you are getting me. So यहाँ पे ये जो 5% है, देखो financial institution is giving to company X and company X is giving to bank. Same way here, this company Y is paying LIBOR plus 1% to the bank, but this is given by financial institution to the company Y. So LIBOR plus 1% financial institution is giving to company Y and company Y is paying to the bank. Okay, this is just a difference. I think it's very easy to understand because financial institution is giving, we are just paying, financial institution is giving, we are just paying. I hope you are getting it. Now look at this, कंपनी X का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपनी X जो था, देखो कंपनी X का ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं फ्लोटिंग पे करूँगा.
दैट इज लिबोर प्लस 0.5%, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फुलफिल करेगा। सी, कंपनी एक्स क्या करेगा, लिबोर प्लस 0.5%, लेकिन वो माइनस भी तो करेगा ना अपना गेन वो माइनस करेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। 0.3, ठीक है। नाउ हियर कंपनी वाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे पे करने वाला है, देखो कंपनी वाई का ऑब्जेक्टिव क्या था, 6.5%, ओके। सो 6.5% माइनस उसका जो भी गेन है 0.2%, ओके। तो यहाँ पे चेक करते कि कितना आता है फाइनल। लिबोर प्लस, देखो 0.5 माइनस 0.3, 0.2%, एंड यहाँ पे 6.5 माइनस 0.2, 6.3%. This is the net payment done by company X and company Y to the financial institution as per their objectives. Okay. एक्सटर्नल पेमेंट, बैंक के पेमेंट के वक्त स्वैप वाला ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पेमेंट, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करते वक्त इंटरनल पेमेंट के वक्त अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पेमेंट। ओके। नाउ इंटरेस्ट रिसीव बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या रिसीव किया है वो सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे रिसीव का मार्क आपको दिख रहा है, ओके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या रिसीव किया, लिबोर प्लस 0.2% प्लस 6.3%, इतना रिसीव किया, राइट। तो देखो लिबोर प्लस 6.3 प्लस 0.2, दैट इज लिबोर प्लस 6.5%, इतना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसीव किया। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पे क्या क्या किया वो एक बार देखते। देखो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसे एरो मतलब ये पे कर रहा है, राइट। देखो यहाँ पे 5% पे किया है और यहाँ पे लिबोर प्लस 1%, ठीक है। सो बेसिकली पे कितना किया, लिबोर प्लस 6% पे किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। अभी ये क्या करना है, माइनस करना है। ये देखो लिबोर प्लस 6.5% इट इज़ रिसीविंग एंड लिबोर प्लस 6% इट इज़ पेइंग, तो ऑब्वियसली रिसीव ज़्यादा हुआ है, कितना 0.5%, 0.5%। सो नेट गेन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पे भी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, जस्ट क्रॉस वेरीफाई 0.5%, 0.5%, ओके डन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी नेट कॉस्ट टू द कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई को अल्टीमेटली फाइनली कितना कॉस्ट पड़ा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो हुआ क्या, बहुत सिंपल है। देखो कंपनी एक्स है, ठीक है, क्या क्या रिसीव किया, क्या क्या पे किया, 5% रिसीव, 5% पेड, देयर इज नो कॉस्ट। बट कंपनी एक्स इज पेइंग, यहाँ पे देखो लिबोर प्लस 0.2%, ओके, इतना उसका कॉस्ट रहेगा। कंपनी वाई लिबोर प्लस 1% पेइंग एंड रिसीविंग, देयर इज नो कॉस्ट। बट यहाँ पे देखो कंपनी वाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना पे करिए, 6.3%। सो बेसिकली ये उनका क्या रहेगा, अल्टीमेट कॉस्ट रहेगा, ठीक है। चाहिए तो आप लोग पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो नेट कॉस्ट ऑफ लोन टू द कंपनी एक्स, कंपनी एक्स ने क्या किया, 5% रिसीव्ड, ओके, उसमें से माइनस करेंगे 5% पेड, बात ख़त्म, ओके। और कंपनी एक्स ने पे कितना किया, फाइनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिबोर प्लस 0.2%, ओके, पेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे किया। तो अल्टीमेट कॉस्ट कितना पड़ा उसको, लिबोर प्लस 0.2%, ठीक है। देन कंपनी वाई का भी सेम है, कंपनी वाई ने लिबोर प्लस 1% पहले रिसीव किया, लिबोर प्लस 1% वही उठा के बैंक को पे किया, ओके, पेड टू द बैंक, प्लस 6.3% पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो अल्टीमेट कॉस्ट इज 6.3%, अल्टीमेट कॉस्ट इज 6.3%, ओके। अभी इन लोगों को गेन क्या हुआ है देखते हैं। देखो क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंपनी एक्स है, फ्लोटिंग पे वो लोन लेना चाहता था, बराबर, फ्लोटिंग पे,
तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग पे उसका रेट कितना था, लिबोर प्लस 0.5%, राइट, बट यहाँ पे उसका रेट कम हो गया है, इसका मतलब 0.3 का गेन हुआ है, वही 0.3 का गेन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इसको 0.2 का गेन होने वाला है। देखो कंपनी वाई फिक्स में 6.5, बट नाउ इट इज़ पेइंग ओनली 6.3%, तो 0.2% का अल्टीमेट गेन हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी वाई को भी उतना ही गेन हुआ है, ओके, 0.3 फॉर एक्स एंड 0.2 फॉर वाई। आई होप नाउ this type of question is totally clear to you, okay. So here we have completed illustration number 70 from your new study material. Now we will go for next question, that is illustration number 71, okay. Illustration number 71, let's start. Company PQR and DEF have been offered the following rate per annum on a $200 million 5-year loan. So basically this is loan amount, this is tenure, and here interest rates are given. Fix दिया हुआ है, floating दिया हुआ है, ठीक है, no problem. Company X requires floating rate loan and company DEF required fixed rate interest loan. Okay, so this is nothing but objective is given. Design the swap that will net bank acting as a intermediary at a 0.5% per annum. So basically these are the bank charges, okay, and be equally attractive to the both the companies. इसका मतलब है जो भी गेन होगा उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिडक्ट द फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज बैंक चार्जेस, एंड रिमेनिंग जो भी आपका अमाउंट रहेगा, सॉरी जो भी आपका परसेंटेज रहेगा गेन का, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन दिस टू कंपनीज PQR एंड DEF, ओके. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लाइक योर अर्लियर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरह ही है, सेम. चलो फटाफट करते हैं हम लोग. PQR है और DEF है, राइट. चलो फटाफट हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो मैंने पहले ही पूरा रिकॉर्ड करके रखा है. देखो PQR DEF, ओके, एज इट इज़. फिक्स इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है दोनों का. हियर वी हैव टेकन डिफरेंस. देयर आफ्टर यहाँ पे आपका फ्लोटिंग का जो भी है रेट्स एंड डिफरेंस, ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज PQR वांट ऑन फ्लोटिंग एंड DEF वांट ऑन फिक्स, ओके. सी डिफरेंस इज मोर ऑफ योर फिक्स. फिक्स में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिक्स में जाके रेट चेक करते हैं. कम कौन सा है, PQR का, ओके. सो PQR को हम लोग बोलेंगे तुझे फ्लोटिंग पे नहीं मिल सकता, तुझे किस पे चाहिए, लेना चाहिए फिक्स पे. तो यहाँ पे फिक्स मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. देन कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट एज पर योर ऑब्जेक्टिव, सेम एज योर लास्ट क्वेश्चन. देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लोटिंग, तो इसका लिबोर प्लस 0.1%, यहाँ पे फिक्स है, फिक्स दैट इज 13.4. टोटल निकालेंगे तो लिबोर प्लस 13.5%, ओके, लिबोर प्लस 13.5%, ओके. देन सेकेंड एज पर स्वैप में देखो यहाँ पे फिक्स है मतलब 12%, यहाँ पे फ्लोटिंग है मतलब लिबोर प्लस 0.6%, ठीक है. नाउ टोटल में कितना आ जाएगा, 12.6%, ओके, लिबोर प्लस 12.6%, okay, done. Now first equation minus second, that is LIBOR plus 13.5 ये फर्स्ट वाले का माइनस LIBOR plus 12.6 ये दूसरे वाले का. सो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.9. सी नाउ टोटल गेन इज 0.9, ओके. फ्रॉम दैट बैंक चार्जेस इज 0.5, सो वी आर गेटिंग डिफरेंस 0.4, ठीक है. नाउ वी हैव ऑलरेडी रीड इन द क्वेश्चन दैट PQR and DEF will share the gain equally, okay. So gain कितना है, 0.4%. इक्वली मतलब बेसिकली वो लोग 50-50% करेंगे, राइट. सो यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ओके. चलो मतलब 0.2% इसका, 0.2% इसका, ठीक है. डन. नाउ आर टेबल, ओके, जो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है वैसे ही करना है. देखो लोन यहाँ पे हम लोग को दिया है $200 मिलियन, ओके. सेम है यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी है. ये बैंक्स विल गिव लोन टू द PQR एंड DEF, ओके. PQR विल पे, DEF विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक. इंटरेस्ट वी नो दैट एज पर स्वैप. सो स्वैप में जाके चेक करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है. देखो PQR का कितना है 12 और अपना जो DEF है उसका लिबोर प्लस
0.6%. ओके, सो यहाँ पे इट इज़ 12%, लिबोर प्लस 0.6%, राइट. Whenever there is a financial institution as a intermediary, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो इंटरेस्ट है वो PQR को देती है और DEF को देती है, बराबर. सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इंटरेस्ट 12% PQR को देगी, वही इंटरेस्ट PQR बैंक को देगा. यहाँ पे लिबोर प्लस 6% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DEF को देगी और DEF बैंक को देगी. ओके, सो सेम यहाँ पे 12% एंड यहाँ पे लिबोर प्लस 0.6%. ठीक है. सो टिल दिस PQR एंड DF को अभी तक कोई भी इंटरेस्ट का कॉस्ट नहीं हुआ है. ओके, बट PQR एंड DF का ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव फ्लोटिंग था PQR का, लिबोर प्लस 0.1% एंड इसका 13.4%, राइट. देखो PQR का लिबोर प्लस 0.1%, बट वो माइनस क्या करेगा, अपना गेन 0.2% का गेन हुआ है ना, वो माइनस करेगा. और DF क्या करेगा, 13.4% माइनस अपना गेन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल चेक करते कि कितना आएगा. देखो 0.1 माइनस 0.2 दैट इज माइनस 0.1. ओके, सो लिबोर माइनस 0.1, 13.4 माइनस 0.2 दैट इज 13.2%. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गेन हम लोग क्रॉस सेल ही करते हैं कि उसका जो चार्जेस है 0.5 वो बराबर आ रहा है कि नहीं. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दीज आर द इंटरेस्ट पेड बट दीज आर द इंटरेस्ट रिसीव्ड. सो लिबोर माइनस 0.1% प्लस 13.2%. ओके, सो चेक करते हैं 13.2 माइनस 0.1 कितना आएगा, 13.1. ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसीव कितना किया है, लिबोर प्लस 13.1%. वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पे कितना किया है, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज द पेमेंट. ओके, सो पेमेंट में 12% प्लस लिबोर प्लस 0.6%. ठीक है, चलो टोटल चेक करते हैं. लिबोर प्लस 12.6% इज द पेमेंट. लिबोर कैंसल, जस्ट चेक दिस, 13.1 माइनस 12.6 इट इज़ 0.5%. आई होप यू आर गेटिंग मी. एग्जैक्टली 0.5% हमारा आंसर आ रहा है, जो बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरमीडिएट उसका चार्जेस. ठीक है, सो ये हो गया सेटल. अभी PQR का सोचते हैं कि PQR को नेट कॉस्ट कितना पड़ा. देखो PQR पे फोकस, 12% आया 12% गया, नो कॉस्ट. बट यहाँ पे देखो ये PQR ने पेमेंट किया है ना, वो हम लोग देखते हैं नेट कॉस्ट. नेट कॉस्ट मतलब यही, लिबोर प्लस 0.1% था, उसमें से उसका गेन उसने माइनस कर दिया, तो उसका अल्टीमेट कितना आ गया, लिबोर माइनस 0.1%. ठीक है, उसके बाद अपना DEF में देखो ये आया गया, नो कॉस्ट. बट यहाँ पे देखो उसका गेन माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आया था वो दैट इज़ 13.4 माइनस 0.2% दैट इज़ 13.2%. डन. अभी एक बार चेक करते कि वो लोग गेन में है कि लॉस में. देखो PQR का ऑब्जेक्टिव क्या था, PQR का ऑब्जेक्टिव फ्लोटिंग में था, लिबोर प्लस 0.1%, बट नाउ इट हैज़ लिबोर माइनस 0.1%. अच्छी बात है. यहाँ पे 13.4 फॉर DEF और यहाँ पे 13.2, मतलब उन लोग का बराबर 0.2% का सेविंग हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 71 भी कंप्लीट किया. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 71. ओके, now this is the last chance for those students who are not getting or who are having some doubts in this type of question. So this type of question, there is a last question, that is illustration number 72. We will go for that. Okay, in the old study material questions are question numbers are different, so just refer this question number. ठीक है, now let's start. Here also we are going to solve in the same way. Okay, चलो. A company A has a outstanding debt on which is currently pays fixed rate of interest 9.5%. The company intends to refinance the debt with the following floating rate of interest. Okay, तो यहाँ पे देखो, अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे
कंपनी करंटली कौन से रेट पे पे करती है, फिक्स पे, बट उसको रीफाइनेंस करना है, उसका जो भी डेट है वो फ्लोटिंग पे करना है, मतलब फ्लोटिंग क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कंपनी ए है और उसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने बता दिया है, ठीक है। द बेस्ट फ्लोटिंग रेट इट कैन बी ऑब्टेन दैट इज लिबोर प्लस 2%, लिबोर प्लस 2% उसका रेट है। देखो ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है और ये फ्लोटिंग वाला है। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जो मिल रहा है वो अभी लिख के लगते हैं, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, तो बाद में सब मिक्स हो जाएगा। देखो कंपनी ए है, कंपनी ए का फिक्स इंटरेस्ट रेट 9.5%, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिबोर प्लस 2%, ओके, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड company currently paying at a fix but it intention is to pay on the floating, intention मतलब ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, फ्लोटिंग पे जाना है कंपनी ए को, ठीक है। चलो कंपनी ए का तो इन्फॉर्मेशन हो गया है खत्म। देखो however it does not want to pay more than the LIBOR, see this is a applicable rate, okay, so applicable rate ही लिखना पड़ेगा हमको। this is the company strategy that company is saying that if we are going for a swap then I am not going to pay more than LIBOR, okay, तो ये कंपनी का विश है, ठीक है। नेक्स्ट, ये विश कब फुलफिल हो सकता है, स्वैप में, ओके, विदाउट स्वैप इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मार्केट में इतना रेट चल रहा है, ओके। अनदर कंपनी बी इज लुकिंग फॉर द लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंस इट्स एक्सपोर्ट, ओके। चलो the best rate it can obtain 13.5%, so I am getting here fixed interest rate of company B 13.5%, but it cannot afford more than 12%, ये उनका प्रॉब्लम है, अपना रेट कितना है वो हमको लिखना है, ठीक है, that is 13.5, don't get confused, okay, this is the last question, so don't get confused here, 13.5 is the applicable rate, this is their wish, okay, their wish will be fulfilled in a swap, not here, okay. However one bank has agreed to offer the finance at a floating rate LIBOR plus 2%, इसका भी floating का rate LIBOR plus 2% ही है, okay. See company B is looking for the loan at a fixed rate, लुकिंग फॉर द लोन एट अ फिक्स रेट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, फिक्स्ड है, ये समझा, ओके। चलो इधर तक इन्फॉर्मेशन समझ में आया। लास्ट लाइन, सिटी बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द इंटरेस्ट रेट स्वैप, सो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना बीच में, वो कौन है, अपना सिटी बैंक, ओके, वो अरेंज करेगा दिस टू कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद सेविंग बाय कंपनी एंड सिटी बैंक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिटी बैंक है वो अरेंज करेगा लोन भी और उसका इंटरेस्ट का स्वैप भी अरेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे बट थोड़ा सा अलग वे में बनाएंगे, ठीक है। सपोज देखो अभी तक हम लोग ने देखा कि दो अलग अलग बैंक होते हैं, ओके, टू बैंक्स आर देयर, टू कंपनीज आर देयर एंड इन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज देयर, बट हियर इन दिस क्वेश्चन दे हैव taken Citibank as an intermediary and loan provider, that's why I am doing the chart या फिर diagram like this, okay, it's very simple. Let's start. First of all we will take the difference, 13.5 minus 9.5, we are getting 4% as a difference. Then here there is no difference, okay, LIBOR that is cancelled, so there is no difference, 0, okay. Now डिफरेंस इज मोर इन योर फिक्स में जाके चेक करो किसका कम है, अपने ए का कम है, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, बाबा तुझे फ्लोटिंग पे नहीं मिलेगा, तेरा कम है ना, तो तुझे फिक्स पे लेना पड़ेगा। ए फिक्स पे गया तो अपना बी किस पे जाएगा, फ्लोटिंग पे जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो, इसको 400 BPS और 0 BPS में कन्वर्ट किया है, ये जो है ना लिबोर का, उसको कन्वर्ट करने की अब भी तो ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूजन में जाओगे, उससे बेटर है परसेंटेज वे में जाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव, चलो उनका ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं फटाफट। यहाँ पे इसका क्या था, फ्लोटिंग, ओके, फ्लोटिंग में अपना रेट कितना था, लिबोर प्लस 2%। यहाँ पे इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड, और फिक्स में इंटरेस्ट रेट था 13.5%, ठीक है। चलो टोटल इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, लिबोर प्लस 15.5%, ओके।
चलो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, स्वैप में चलते हैं। स्वैप में इसका है फिक्स्ड मतलब 9.5%, यहाँ पे इसका है फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग मतलब लिबोर प्लस 2%। ठीक है, चलो टोटल निकालते हैं। लिबोर प्लस 9, 10, 11.5%। ठीक है, चलो अभी गेन कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, चलो तो फर्स्ट में हम लोग का रेट क्या है, लिबोर प्लस 15.5% माइनस सेकेंड में लिबोर प्लस 11.5%। चलो चेक करते कितना आता है, 15.5 माइनस 11.5, इट इज़ 4%। एग्जैक्टली 4% ही आता है अपना गेन। ठीक है, 4% अपना गेन आ रहा है। चलो स्वैप की वजह से 4% का गेन है। अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गेन के बारे में वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि आपको ये जो गेन है वो एग्जैक्टली किसको देना है, क्या करना है, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, रेशो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, इवन सिटी बैंक चार्जेस इज़ ऑल्सो नॉट गिवन। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट, नॉर्मली कैसे होता है कि बैंक के चार्जेस आपको बताया जाता है, बट यहाँ पे आपको बैंक के चार्जेस नहीं बताए, तो ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। कंपनी ए है, कंपनी बी है। ओके, इन लोग को लोन दिया है सिटी बैंक ने। सपोज ऐसे अगर क्वेश्चन में आया कि सिटी बैंक ही जो लोन दे रही है वही आपको स्वैप अरेंज करके देगी, तो कैसे होगा, तो सिटी बैंक है, लोन देगी, बराबर। अभी कंपनी ए सिटी बैंक को और कंपनी बी सिटी बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी, जैसे एज यूजुअल पे करती है। ओके, कैसे, स्वैप के हिसाब से। देखो स्वैप के हिसाब से कंपनी ए 9.5% से देगी और कंपनी बी लिबोर प्लस 2%। सो 9.5% लिबोर प्लस 2%। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखो नॉर्मली होगा क्या, ये जो इंटरेस्ट है वो सिटी बैंक ही ए को देगी, बिकॉज सिटी बैंक जो है वो लोन प्रोवाइडर भी है और इंटरमीडियरी भी है। तो वो केस में होगा क्या, ओके, दिस सिटी बैंक इज लोन प्रोवाइडर ऑल्सो एंड इंटरमीडियरी ऑल्सो, सो सिटी बैंक इज रिसीविंग 9.5 फ्रॉम हियर एंड दैट 9.5 इज गिवन टू कंपनी ए, दैट इज फ्रॉम सिटी बैंक ओनली। सो ये क्या है, 9.5 आ रहा है, जा रहा है, लिबोर प्लस 2% आ रहा है, जा रहा है। ओके, तो ये इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग ने किया था। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 12% ये इसको देता है और ये बैंक को, बट यहाँ पे बैंक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो ये 12% का अल्टीमेट इफेक्ट कुछ भी नहीं था, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, सो स्वैप वाले में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, बट ए क्या करेगा, ए पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का नॉर्मली जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करता है, और कंपनी भी किसके हिसाब से, उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है, लिबोर प्लस 2% है और यहाँ पे है 13.5%। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बोली थी कि कंपनी ए जो है वो लिबोर से ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे बोला था, देखो कंपनी ए कैन नॉट अफोर्ड मोर देन लिबोर, ओके, कैन नॉट अफोर्ड मोर देन लिबोर, एंड कंपनी बी जो है वो 12% से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ये लिबोर ही सिर्फ देगा क्योंकि यहाँ पे स्वैप हो रहा है तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ज़्यादा वो नहीं देगा। ठीक है, तो अब भी हम लोग चेक करेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव बाय सिटी बैंक कितना है। सो हियर वी गेट नेट गेन ऑफ 4%। नाउ नेक्स्ट स्टेप, net gain is equal to total gain minus bank charges. Okay, but in this question information regarding bank charges is missing, so we have to find out the bank charges first and then we are going to write all these things. Okay, so here we have drawn this graph. I have drawn this graph for twice. First of all, Citibank is considered as a normal bank and financial institution, and here for understanding purpose I have written normal diagram which we have already done in last 2 to 3 questions. okay, so यहाँ पे देखो सिटी बैंक है इस पार्ट में, एक्चुअल में ये आंसर का पार्ट है। ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर। सिटी बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन also and normal bank which is providing loan to the company A and B. See,
simple logic is there. Company A, company B, Citibank is there, right? Citibank is giving loan to company A and loan to company B. ठीक है, company A will give interest to Citibank, company B will give interest to Citibank as per swap. So swap के हिसाब से कितना इंटरेस्ट जाएगा वो एक बार चेक करते हैं. सी स्वैप में कंपनी X 9.5% एंड कंपनी A 9.5% एंड कंपनी B लिबोर प्लस 2%. सो 9.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा कंपनी A से बैंक में और यहाँ पे लिबोर प्लस 2%. ओके, बट Citibank is also financial institution. So we have seen that in the last question. See, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने कैसे देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बैंक है. ओके, बिकॉज हियर बैंक आर डिफरेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अरेंजिंग स्वैप इज डिफरेंट इन द लास्ट क्वेश्चन. बट इन दिस क्वेश्चन बोथ आर सेम, दैट इज लोन प्रोवाइडर एंड स्वैप अरेंजर, both are same, that is Citibank. That's why little bit complication is there. See, if that complication would not be there, then what will be the answer? See, कंपनी A, कंपनी B, बैंक्स, लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी ने यहाँ पे बैंक को पे किया और यहाँ पे बैंक को पे किया, कंपनी A ने, कंपनी B ने. ठीक है, बट ये जो इंटरेस्ट है वो कौन देगा कंपनी A को? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे इंटरेस्ट आया गया, यहाँ पे इंटरेस्ट आया गया. ठीक है, और ये जो कंपनी A है और कंपनी B है वो अपना अल्टीमेट इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किसको देगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. ठीक है, तो देखो यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लिबोर प्लस 2%, ओके, कंपनी A का, और फिक्स का इसका कंपनी B का फिक्स इज 13.5%. बट क्वेश्चन में हमको बोला है कंपनी A कैन नॉट अफोर्ड मोर देन लिबोर. ओके, लुक एट दिस. कंपनी A cannot afford more than LIBOR and कंपनी B cannot afford more than 12%. ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी A कितना पे करेगा? सिर्फ लिबोर पे करेगा और कंपनी B 12% पे करेगा. आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी है जो स्वैप एग्रीमेंट बनाता है वो टाइम पे क्वेश्चन सिंपल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ इंटरेस्ट पे करेगा जो स्वैप के हिसाब से वो कंपनी A को, और वही इंटरेस्ट कंपनी A बैंक को पे करेगा और A अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करेगा. ओके, बट इन दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम इज दैट सिटी बैंक इज लोन प्रोवाइडर एंड सिटी बैंक इज स्वैप अरेंजर. सो लुक एट दिस. नॉर्मल स्वैप इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी A टू सिटी बैंक. ओके, बट वही इंटरेस्ट सिटी बैंक देगी ना कंपनी A को. ओके, बिकॉज ये जो सिटी बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, मतलब जो स्वैप एग्रीमेंट बनाएगी, और वही लोन प्रोवाइडर भी है. सो सेम वे पे कंपनी B इंटरेस्ट लिबोर प्लस 2% एज अ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंपनी B बैंक के लिए देगी ये इंटरेस्ट स्वैप के हिसाब से, बट वही इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी बैंक B को देगी. मतलब इसका कुछ इफेक्ट है नहीं. ओके, इसका कुछ इफेक्ट नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो यहाँ पे भी उसका इफेक्ट नहीं आता है. 9.5 आया गया, लिबोर प्लस 2% आया गया, नो इफेक्ट फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर इज इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बस ये समझने वाली बात है. अल्टीमेटली कंपनी A क्या पे करेगा? सिटी बैंक को लिबोर उतना ही वो अफोर्ड कर सकता है, कंपनी B 12% पे करेगा. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सिटी बैंक, दैट इज देखो रिसीव्ड ओके, लिबोर प्लस 12%. ओके, लिबोर प्लस 12%, इतना ही सिटी बैंक ने रिसीव किया है. बट पे करते वक्त एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आया वो नहीं देखना है, वो गया उतना ही देखना है. ठीक है, देखो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉर्मल क्वेश्चन में, देखो आया कितना? लिबोर प्लस 12%, बट गया कितना? 9.5% प्लस लिबोर प्लस 2%, दैट इज लिबोर प्लस देखो 9.5 प्लस 2 कितना आया? 11.5%. इतना गया है इंटरेस्ट. ओके, इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो. देखो यहाँ पे दिखने में क्या हो रहा है? 9.5% आया गया, लिबोर प्लस 2% आया गया, बट वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, बट इन केस ऑफ सिटी बैंक आपको जो पेमेंट हुआ है वो देखना है. रिसीव वाला तो हम लोग ने देख लिया, पेमेंट इतना हुआ है ना एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ये रिसीव्ड वाला है और ये पेड वाला है. ठीक है, तो चलो पेड वाले में क्या क्या आएगा? देखो लिबोर प्लस 9.5 प्लस 2 इट इज़ 11.5%. ठीक है,
तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, रिसीव्ड में से पेड माइनस करते हैं, लिबोर कैंसिल, 12% माइनस 11.5%, कितना आएगा, दैट इज 0.5%। ये है आपका नेट गेन टू द सिटी बैंक। सिटी बैंक जो चार्जेस वगैरह चार्ज करती है तो वो क्वेश्चन में नहीं दी था, ओके, क्वेश्चन में वो मिसिंग था पूरा इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग ने वो फाइंड आउट किया वो कैसे आया। सिंपल है, इंटरेस्ट रिसीव में से इंटरेस्ट पेड माइनस कर दो तो आपका जो भी बचेगा वो आपका क्या रहेगा, नेट गेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मुझे नेट गेन मिला है। अपना टोटल गेन चेक करो कितना हुआ था, टोटल गेन अपना हुआ था 4%, ठीक है, 4% माइनस बैंक चार्जेस 0.5%, तो अपना बचेगा कितना, 3.5%, ठीक है, 3.5%। ये जो है इसका रेशो भी मिसिंग है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, दैट इज़ नॉट अ टाइपिंग एरर, वो क्वेश्चन ही वैसा है, ठीक है। 3.5% आपका नेट गेन है। अब ये जो नेट गेन है इन दोनों में हमको क्या करना है, बेसिकली डिवाइड करके दिखाना है। तो चेक करते हैं कि किसको कितना बेनिफिट हुआ। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी ए का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपनी ए का ऑब्जेक्टिव था लिबोर प्लस 2%, राइट, इतना उसको देना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, लिबोर प्लस 2% इतना वो देना चाहिए, माइनस उसने एक्चुअल में दिया कितना, देखो कंपनी ए ने एक्चुअल में दिया कितना, लिबोर सिर्फ, तो माइनस करेंगे लिबोर कैंसिल, बराबर, तो इसका गेन कितना हो गया, 2%। आई होप ये समझ में आया होगा। कंपनी बी का ऑब्जेक्टिव देखो कितना है, 13.5%, राइट, 13.5% ये उसका ऑब्जेक्टिव था कंपनी बी का, बट उसने अल्टीमेटली पे कितना किया, सिर्फ 12% पे किया है, सो माइनस 12% करेंगे तो यहाँ पे देखो 13.5 माइनस 12 इट इज़ 1.5%। अगर इन दोनों का टोटल हम लोग निकालेंगे 2% प्लस 1.5 कितना आता है, 3.5%, तो हुआ ना इतना, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके ग्राफ पे जाते थे, अभी हम लोग ने उल्टा किया, पहले ग्राफ पे गए उसके बाद ऊपर का कैलकुलेशन किया, ओके। रीज़न इज दैट इंफॉर्मेशन वॉज मिसिंग रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ दिस गेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैंक चार्जेस, ओके। तो बैंक चार्जेस करने के लिए सबसे पहले डायग्राम में गए, उसमें से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला, वो यूज़ करके हम लोग ने टोटल गेन में से माइनस किया, तो इन दोनों का गेन हमको समझ में आया। देन उनका ऑब्जेक्टिव में से उन्होंने एक्चुअल में क्या किया वो माइनस करने के बाद हमको एक गेन मिला, ओके। तो ये सारा डेटा आपको चेक करने मिलेगा आंसर में। यहाँ पे देखो नेट कॉस्ट ए एंड बी का, लिबोर उसने पे किया और यहाँ पे 12% पे किया, बराबर। यहाँ पे 200 BPS मतलब बेसिकली हम लोग परसेंटेज के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो 2% गेन है सेविंग किसका, ए का, और यहाँ पे 1.5% बी का है, ओके। और यहाँ पे बैंक का भी दिया है, देखो 50 BPS कमीशन मतलब 0.5%, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप था इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि न्यू जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट किया है, ओके। So here we have completed illustration number 72. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and also check the Telegram group to get the notes. Thanks for watching, friends.